don't want to see another Reform MP in Parliament, full stop, and I definitely don't want to see one here in Manchester. देखो विचों ही लग गया खान साहब, बर्बाद कर गया सारा कुछ. Immigration white paper which Shabana Mahmood announced. You know, there's lots of good things in there as well. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं मैनचेस्टर आया हूँ. यहाँ पे बाई इलेक्शंस हो रहे हैं. सख्त मुकाबला चल रहा है लेबर का और रिफॉर्म पार्टी का. आज यहाँ पर जिस जगह ये बेसिकली तो इलेक्शन की ही कैंपेन चल रही थी और यहाँ पर डिप्टी लीडर लेबर पार्टी की सबसे बड़ी, आपको याद होगा, लूसी पावल का, जिन्होंने बड़ी जानदार तकरीर की थी जिस दिन ये इलेक्ट हुई थी कि जनाब हमें नाइजल फराज से डर कर फ़ैसले नहीं करने चाहिए, हमें अपनी दोस्तियाँ ख़राब नहीं करनी हैं, हमें अपनी रवायत ख़राब नहीं करनी, इमिग्रेशन को रोकना है लेकिन किसी के डर से नहीं. सो आज ये यहाँ आई हुई हैं. इनसे मैं कोशिश करूँगा कि वो इंटरव्यू दे दें मुझे, वो फिर आपके सामने पेश करूँगा, वही सवाल इनसे रखेंगे. तो आइए चलते हैं. Hi, are you all right? Yeah. As an impression from the community, they said whatever they're doing at the moment, Shabana Mahmood and immigration, it's just look like that they are just scared of Nigel Farage and his speeches. No, not at all. Look, I think what people want from us is a country that is tolerant. It is tolerant. It's diverse. It's open, and that is what we, as the Labour Party, the Labour government, that is what we represent. That's what we support. That's what we value. But I think everybody from all communities would expect that any government has some control over its immigration. That's fair. That people who want to come here and work and contribute, that they're able to do that. And we have had this issue recently with a lot of people coming here illegally on small boats and all of that. But I think all the details of our immigration white paper, which Shabana Mahmood announced, there's lots of good things in there as well. So safe routes now, for the first time, we're going to have some safe routes into the country so people don't need to come here illegally. People who do contribute will be able to apply sooner for indefinite leave to remain, so people who volunteer or contribute in other ways or have high levels of English. So there's a whole range of things. I think sometimes the media focus on one aspect of it, but I would urge your viewers to really have a look at that in detail, because I think most people would realise that it's actually very fair, it's progressive, and we'll make sure that our system has some integrity so that people can respect our immigration system and that they're not trying to flout it. Let's talk about Gordon, the by-elections. Do you think you're going to get a tough time this election, by-elections? We've had a really positive response here in Gorton and Denton, because I think Reform coming into town, bringing their circus, bringing their horrible candidate into our city has been really galvanising for people who don't want to see that. But also because here in Manchester, I think we do have a much stronger Labour brand and a Labour values. People around here have seen Labour in action for many, many years, providing good services, supporting families locally, and so we are getting a lot of support and a lot of response, and so I'm positive about this campaign. One last thing, the online polling, all the polls, they said Nigel Farage is going up, his rating is so high. If elections announced tomorrow, he will be Prime Minister. Do you think this by-election will be a test case for reforms as well? Well, it's not a test case, it's really important in its own right, because I don't want to see another Reform MP in Parliament, full stop, and I definitely don't want to see one here in Manchester, because that is not what Manchester is about. Can you imagine a Reform MP representing Longsight and Levenshulme and Burnage and Gorton and Denton in Parliament? I find that really appalling, and that's why I want people to come out and vote Labour in this campaign, because only by voting Labour can we stop reform. But also it's a positive step. It's a positive step to say, no, we want unity over division, and that's what this campaign is about. Thank you very much, Lucy. I'm a very good luck. Thank you very much. दोस्तों, आपने लूसी पॉवल का तो इंटरव्यू सुना, खान साहब का भी आपने कुछ दिन पहले बड़ा देखो विचों ही लग गया. खान साहब बर्बाद कर गया सारा कुछ. नहीं इतों ही कराएंगे खान साहब, कोई ऐसा मसला नहीं. अच्छा, लूसी पॉवल से तो मैंने काफ़ी पूछा है, ये
मैं आज इलेक्शन पे बात करूँगा। ये टेस्ट केस है आप लोगों का, मैनचेस्टर का, कभी सीट हारी नहीं है लेबर ने। इस दफ़ा बहुत ख़तरा महसूस हो रहा है। लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं कि इस दफ़ा बड़ा ख़तरा है, बड़ी ताकत लगा रही है। क्या उसकी वजह नाजिल फराज का बयानिया है या आप लोगों की कोई अपनी कमज़ोरी है? देखें जी, मैनचेस्टर लेबर सिटी है, मैनचेस्टर लेबर फ्लैगशिप है। मैनचेस्टर के पास बहुत ही अच्छी और पावरफुल लेबर काउंसिल है। हमारे पास बहुत ही अच्छा लेबर मेयर है और नेशनली हमारे पास एक बहुत मजबूत लेबर गवर्नमेंट है। जो लोगों के मसाइल हैं उनका तल्लक पिछले 14 साल के कंजर्वेटिव पार्टी के साथ है। जो उनकी पॉलिसी थी, जो इकोनॉमिक फेलियर था, जिसकी वजह से हम आज इस मुश्किलात में खड़े हैं और लोग जो हैं सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि जितनी भी जल्दी हो सके इसको इम्प्रूव किया जाए। इस साल आपने देखा है कि मैनचेस्टर काउंसिल को बहुत ही अच्छी बजट सेटलमेंट हुई है। जो पहली बार वो एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं किस तरह हम बेहतर कर सके हैं। तो हमारा यही मफाद है कि इसी तरह इस चीज़ को आगे चलने दें और इंशाल्लाह आइंदा सालों में आप देखेंगे कि किस तरह ना सिर्फ मैनचेस्टर के हालात बदलेंगे, ना सिर्फ गुर्बत के हालात बेहतर किए जाएंगे, ना ये कि हमारे यंग लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बेहतर होगी, लेकिन ओवरऑल सब इसको फील करेंगे कि जो डिफरेंस है लेबर गवर्नमेंट का। 26 को है बाई इलेक्शन, तो अब तक के आपके जो फिगर, क्योंकि इस दफ़ा मैंने देखा है जी सादिक खान भी आ रहे हैं, लूसी पावल भी आ गई, पहले तो कभी इस तरह नहीं हमने नोटिस किया इतना। हाँ, पहले आपको ये भी पता होगा कि हम अपोजिशन में थे। आपको पहले ये भी पता होगा कि हमारे पास कुछ 200 MP थे। इस वक्त हमारे पास 420 MP हैं, लेबर गवर्नमेंट है। तो ये नेचुरल है कि ये चीज़ ज़्यादा लोग होंगे, तो वो अपनी पार्टी के लिए आ रहे हैं। रिकॉर्ड नंबर पे लोग आके कैंपेन कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। खान साहब, प्राइम मिनिस्टर का जो इस वक्त मामला चल रहा है, US एम्बेसडर वाला, आपको लगता है कि वो इम्पेक्ट करेगा इलेक्शन? आई थिंक लोग जब आप गवर्नमेंट पे होते हैं ना, तो आप जब भी कोई पॉलिसी करते हैं तो उसमें का इम्पैक्ट होता है। कहते हैं कि अच्छे से अच्छी आप डिसीजन लेंगे ना, उसकी भी जो सपोर्ट होती है वो 80% होती है, 20% उसको पसंद नहीं करते। तो नेचुरल है, हम गवर्नमेंट के अंदर हैं, हम पॉलिसीज़ बना रहे हैं, उनको पसंद नहीं कि कुछ चीज़ों को किया जाएगा, उसका भी इम्पैक्ट होता है। जब बाई इलेक्शन होता है तो टर्न आउट का भी प्रॉब्लम होता है। बाई इलेक्शन में ये भी होता है कि लोग मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इस चीज़ को मुश्किल बना रही हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद हैं, हम अपनी पूरी कैंपेन कर रहे हैं, हम पॉजिटिव हैं, लोग इस बात को समझते भी हैं और वो चाहेंगे कि यहाँ से लेबर MP आए। बहुत शुक्रिया खान साहब। आज का जी हमारा वीलॉग जो था वो तो बाई इलेक्शंस, उसमें मैंने फिर आज लूसी पावल को वो क्वेश्चन तो कर दिए इमिग्रेशन के, लेकिन बेसिकली आज के लिए अपने इलेक्शन में बिज़ी हैं और इलेक्शन का ही दौरा चल रहा है हर जगह पर। लेकिन ये फिर भी टेस्ट केस ज़रूर साबित होगा नाजिल फराज के दावों का, कि वो कहता है कि जी सुबह इलेक्शन करवाते मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, और इसके इलेक्शन से ही वाज़ा हो जाएगा कि जो ऑनलाइन पोल्स होते हैं वो और फील्ड में जो वोट होते हैं उनमें कितना फ़र्क होता है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।